أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی. علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی. خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی. مرید ہو گئی شب مرید ہو ذوالفقار علی. مرید ہو گئی حیدر کی ذوالفقار علی. ادائیں دے کی ہے جان سے قلم چلانے کی. ادائیں دے کی ہے جان سے قلم چلانے کی. علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا مرحبا مرحبا. آج 15 رمضان آمد نواس رسول جگر گوشہ بطول مولائے کائنات حضرت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا، آپ تمام ناظرین کو مبارکباد. اور آج کا دن کسی عید کے دن سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ آج ان کی آمد ہے جو خود ہم شکل پیغمبر تھے، جن کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول خدا کی شبیہ یہی ہیں، اور اسی لیے ان کو ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے. اور آپ کے فضائل اور آپ کی محبتیں جو دشمنوں سے رہی ہیں کہ کسی نے اگر ان سے تلخ کلامی بھی کی تو آپ کی محبت اس قدر اس کی طرف جاتی کہ وہ خود ان کی مریدی میں آنے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ ناظرین کے اتنی اعلیٰ شخصیت کے مالک میرے مولا حسن مجتبیٰ جن کی آج آمد ہے، آج یہی ہمارا موضوع ہوگا. اور مختلف منقبت خوان، نعت خوان اور علماء اکرام ہمارے ساتھ آج ان کی سیرت کو بیان کریں گے کہ آج کا دن 15 رمضان کی جو ہم سحری کرنے جا رہے ہیں، نواس رسول کی آمد کا دن ہے. تو آج K21 نیوز نے خصوصی ٹرانسمیشن مولا حسن کے نام کی ہے. تو آئیے چلتے ہیں، منقبت کا آغاز کرتے ہیں میثم رضا سے. میثم رضا عطا کیجئے کلام اپنا. ماشاء اللہ. سب سے پہلے محمد و آل محمد پر درود بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے قبلہ. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا. اور بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا. سید میثم رضا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فقیروں کی یا اہل
रहें या नबी, अपना जलवाए है दिखा दीजिए। अनवार रमज़ान के सहर ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद थी उमैमा शहजाद। बहुत अच्छी नात पढ़ी उन्होंने, कलाम बहुत पेश किया खूबसूरत कलाम पेश किया। अब हमारे साथ हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं हमारे मेहमान अशरफ मेमन साहब। आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप आज भी आए। और शकील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो प्रोग्राम की और जान उनको है। देखते साथ मुझे हंसी आ जाती है। और क्या हाल है और ये तो जान है ही, जो कि आज खुशी का दिन भी है। हंसी आ जाती है बंदर ये बात समझ हंसी आ नहीं आई जाती मुझे। है। जो बंदर को देख के हंसी आती है। नहीं, मैं एक दफ़ा चिड़ियाघर गया कि मैंने बंदर देखना है, कह रहा रुक जाओ, बंदर को बुला दो, तुम्हें देखेगा। बहरहाल ये तो मजाक की बात है। आज विलादत इमाम हसन कौन था? अच्छा, ये बर्दाश्त जुमले देते हैं। देखिए, अरे लाफ्टर दिया टाइमिंग, इन्होंने। हाँ, नहीं टाइम नहीं, पे दिया माशाल्लाह, लाफ्टर। माशाल्लाह। चाहिए होता है, इतने अच्छा होना नहीं, चाहिए इनका था। एक जुमला देखिए, अदबी एक होता है ना, जो हम जो सीरियस थिएटर कहते हैं, अदब के दायरे में अनवर लेक्चर मकसूद देना। साहब के थिएटर होते हैं, कमाल अहमद रज़ी साहब, वो ये वाला जुमला दे दिया आपने, एक जुमले में सब कुछ कह दिया आपने। लेकिन नहीं, सच बात है कि हम तो फख्र करते हैं आप पे, शायद उसको ख्याल आया हो ना आया हो, लेकिन मैं आपको आ गया, बड़ी मेहरबानी आप। चलो इस दफा नाज़रीन देखिए- आपके साथ जाऊंगा मैं। ना तो देखे कि अशरफ भाई जो है मेरी पहचान तो नहीं करेगा वो मेरी पहचान नहीं वो नहीं करेगा। और लग रहा है बहुत कि सारे मुझे होते हैं। लाफ्टर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन सर, अशरफ भाई बहुत सीनियर हैं, लेकिन आज चुटकुले अचानक से लाफ्टर मार दिया उन्होंने आपको। देखिए जरा, नहीं, मैं लाफ्टर का जवाब पंचिस कहते हैं, पंच टाइम पे पंच दिया, कह रही टाइमिंग हूँ। कहते हैं। हमारे उमर भाई बताते हैं, उस्ताद है हमारे को। टाइमिंग दुनिया, पूरी दुनिया टाइमिंग पे चल रही है, रिदम पे चल रही है। लेकिन कॉमेडी जो है वो टाइमिंग पे अल्लाह, हाँ, ज़्यादा एक टाइमिंग बात को आउट सुन हुई, के- आपको जुमला गया, लोग नहीं हंसेंगे, कुछ भी कर लो नहीं हंसेंगे। अच्छा चलिए, थोड़ा मुझे ये बात बताइए आपके, जब आप पहली दफ़ा थिएटर में इन हुए तो कोई ऐसा कोई वाक़या आपके साथ नमूदार हुआ हो कि जिसको आज तक आप खुद सोच के उसका लुत्फ उठाते हैं और हंसते हैं? मैं उसमें मैं लंगड़ा था एक टांग से ना, ये लंगड़ा की, यानी कि मुझे आज जो मेरा क्यू था, जो ना टाइमिंग थी, मैं उसमें बिफोर एंटर हो गया, मुझे पता नहीं था, किसी ने भेजा ही नहीं। मैं समझ शायद मेरी एंट्री आ गई, मैं स्टेज पे लंगड़ाता हुआ चला गया। अब जो साथी को एक्टर था वो क्या कह रहा है, ये नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। अच्छा, मैं सीधा होके वापस आ गया, सीधा होके वापस लंगड़ा होके गया था और सीधा होके चलता हुआ आ गया। लेकिन वो भी लाफ्टर हो अब वो सर जबरदस्त वो सर आपको हिदायत मिल गई, वो आपको हिदायत मिल गई। फिर डायरेक्टर ने कहा आप हर शो में ये करेंगे, अच्छा, डायरेक्टर ने हर शो में यही करोगे। सर वो हिदायत मिल गई आपको, मतलब आदमी टेढ़ा होके जा रहा होता है, सीधा हो जाता है, तो ये हिदायत मिल गई। हिदायत मिल गई ना तुम्हारे पास। लेकिन उस पर लोग ज़्यादा हंसे होंगे। मैं कहा वो फिर उसके बाद डायरेक्टर ने कहा भाई आप ये हर यही रखेंगे ही। फिर मैंने वो कहा 13 शो थे, 13 के 13 में यही किया था मैं। अच्छा, वो लफ्तर बन गया कि भाई आपने यही हाँ, करना है। फिर दिखाया कि मैं जाली वो होता हूँ, भिखारी मांगने वाला, जो इस तरह हमने पेंट करके उसको लेके चले थे, तो इस तरीके से वो बस टाइमिंग होती है स्टेज यहाँ की। तो चुटकुलों की बात हो गई, वहाँ पे एक संजीदा बात भी जी, शामिल बिल्कुल। करें कि आज विलादत इमाम हसन बहुत है बड़ा दिन, और बहुत बड़ा आज का दिन है, बहुत। हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ी होता बड़ी है, रहमत और क्योंकि फजीलत वाला दिन नवाज़े रसूल, बिल्कुल। जिगर गोशाए बतूल। बिल्कुल जनाब। आज का दिन भी अशरफ भाई किसी एक के दिन से कम नहीं है, हाँ, क्योंकि जिसको मेरे आका फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। और अभी अल्लामा साहब ने भी बात कही कि हसनैन करीम है। बिल्कुल हसन हुसैन अशरफ भाई, आज के दिन आप भी ग्रीन है, आप भी सुन्नत रसूल पे पैरहा हैं। दो बातें आज मेरे जहन में आई जब मैं अल्लामा साहब को सुन रहा था और आपको सुन रहा था जो यहाँ साहब बैठे थे, तो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही ऐसी मुझे बात नज़र आई है जगहानियत की कि बात हम करते हैं ना कि किसी फ़िरके के हवाले से या किसी तफरुक़े के हवाले से कि बात कहीं बिला वजह की जाती है कि भाई ये इनकी सोच में इस तरह की बात है या इस तरह की बात किसी और फ़िरके के हवाले से। लेकिन दोनों असहाब जिस तरह से बात कर रहे थे, इतने रिदम में और इतनी एक दूसरे की बात की तारीफ, और हर जुमला हर बात अल्लामा साहब भी इतनी ही मोहब्बत, इतनी चाहत के साथ उनको दुआ दे रहे थे। और आप जो यहाँ बैठे थे अपनी जो बात कह रहे थे, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ऐसा कि हम और एक
कहीं बात कहीं दूसरी बात कहीं नज़र ही नहीं आती। तो ये मैं इस बात से तो अल्लाह के फजल से मुझे यकीन हो गया कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो है, कुछ बात कहीं कहीं कुछ बातें थोड़ा सोच का हल्का सा फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन हमारे दीन में तफर्रुक़ का कोई नहीं डालता। बड़ी अच्छी बात की। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और नाज़रीन बिल्कुल इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को हम जब कायम रख के चलेंगे, क्योंकि हम नबी के मानने वाले हैं। बात आती है, हम सिरातुल मुस्तकीम पर चलने लगते हैं, और अगर हम हसन हुसैन उनकी कुर्बानियों को देखें तो फिर शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन उस घराने पे तो जान कुर्बान है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक पढ़ रहा था मैं कहीं, आपसे किसी ने पूछा कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया कि जानवर सिर्फ अपनी सोचता है और इंसान दूसरों के लिए सोचता है। वाह वाह वाह। अब ये लेसन हम इंसान खल्के इंसानियत के लिए, मुसलमान के लिए नहीं है, खल्के इंसानियत के लिए, कि दूसरों का जो सोचेगा, जो हम अपनी थीम लेके चले थे। आज तो हमारी कोई वो उस लाइन पे हम आज बात नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि वो नेकी वाला सिलसिला में जी जी, वो कल से शुरू होगा इंशाअल्लाह। लेकिन वो जो बात है, बड़ों की बात है और अजमत वाली बात है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान, मुसलमान तो फिर बात अलग हो जाती है, इंसान अगर ये बात लेके चले कि किसी न किसी तरह किसी दूसरे के लिए सोचे, तो ये दुनिया की रहमतें हम सब पे नाज़िल हो जाएं, हम सब जो है मेहरबान हो जाएं। जैसे अभी आपकी बात थी ना, तो इसी बात में बताऊं कि मौला हसन अलैहिस्सलाम का कौल है कि तुम्हारी उम्र घटती जा रही है, तुम्हारी उम्र घटती जा रही है, तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है उसे राय खुदा में खर्च कर दो। बेशक, क्या बात है। सखावत हमारी इमाम उम्र हसन घटती जा से रही मिलती है। दस्तरखान जैसे मशहूर था मौला हसन का, दस्तरखान, कभी दस्तरखान की बात भी हुई। वाह वाह वाह। बाकी नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन के हवाले से कोई भी गलती कोताही हमसे दरपेश हुई हो तो हम उसके माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि वक्त कब गुज़रा पता ही नहीं चला। हम चाहते थे कि इस रात को हम इस सहरी को चलते रहते, लेकिन अशरफ भाई और शकील शाह साहब भी आए, क्योंकि आज आना था इनको, क्योंकि आज जो दिन था उसको हम चाहते थे कि हम सब बाबरकत इमाम हसन के नाम कर दें। तो आज हमने एक छोटी सी नेकी जो अशरफ मेमन के साथ हमारा सेगमेंट है, इंशाल्लाह उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। आज का दिन इमाम हसन के दस्तरखान के हवाले से बात हुई, तमाम ही उनकी फजीलतों पे बात हुई, जन्नत के कपड़े के हवाले से बात हुई, और वो मौजू मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कहा गया कि मैं दर्जी हूँ, जन्नत का कपड़ा लेके जिब्राइल का है, उन्होंने कहा कि मैं हसनैन का दर्द हसनैन का दर्जी हूँ। बहुत तो बड़ी बात नाज़रीन, है कि मुझे सदफशम, शकील शाह साहब और अशरफ मेमन को स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अशरफ मेमन की छोटी सी नेकी भी सहर के इख्तिताम तक इंशाल्लाह। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। हमें अल्लाह दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुश आमदीद। अनवार रमज़ान के सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मनकबत खां और शायर भी मौजूद थे, जो कि जावेद मिर्ज़ा साहब, और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक में जाने से पहले देख रहे थे दस्तरखान, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर बिल्कुल हमारे मेज़बान आपके घरों पे आते हैं और आपके साथ सहरी का दस्तरखान सजाते हैं। बिल्कुल चलते हैं मनकबत खान की तरफ। बिल्कुल। आज हमारे कौन है? साथ महविश जैदी हैं। महविश जैदी, बिस्मिल्लाह, अता कीजिए। और जावेद भाई ने भी बहुत अच्छा कहा कि जो इस दर्द से वाबस्ता हो जाता है, फिर उस पर कोई वबा, कोई मुसीबत असर नहीं करती। और हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस नबी की उम्मती हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे
بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے انہوں نے. بالکل مہوش ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن بہت ناظرین وقت خوبصورت. ہمارے پاس کم ہے اور بالکل جس ہم کی چاہتے ہیں وجہ کہ سے سب کو ہم چاہ رہے سنیں. ہیں کہ سب کو موقع ملے اور تھوڑا تھوڑا اگلی پڑھنا ہے. منقبت خوان ابھی کی ہمارے جانب پاس چلتے ہیں. ایک منقبت خواہ موجود ہیں فضا جعفری. فضا جعفری عطا کیجیے گا. بسم اللہ. چھپا نہیں سکتا میں کی کوئی فضیلت گھٹا نہیں سکتا حسن کے حسن کو یوسف نے دیکھتے حسن کے حسن کو یوسف نے دیکھتے میں کے چہرے سے ہٹا نہیں سکتا میں کے چہرے سے ہٹا نہیں سکتا میرا ماشاءاللہ فضا جعفری آپ نے کمال کر دیا. بہت اچھا پڑھا. چلتے ہیں ناظرین ایک وقفے کی جانب. وقفے سے واپس آئیں گے اور جس کا انتظار ہمارے سامعین کو ہے پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا آج امام حسن کی آج ولادت کا دن ہے اور نعتیہ مقابلہ جس کا آپ کو شدت سے انتظار رہا کرتا ہے. عدنان عابدی ہمارے ساتھ آڈیشنز کے جج موجود تشریف فرما ہے. کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہے. چلیں ناظرین بنا کسی تمہید کے کیونکہ آپ لوگ بے چین ہیں کہ آج کون کون سی آوازیں ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہیں جو اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. چلتے ہیں ہماری ثنا خان کی طرف. کہ آج کون ہے صدر؟ الشبا فتح محمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی الشبا کیا پیش کریں گی؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ پڑھیے. تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا تیرے نام کے بدولت تیرے نام کے بدولت میرا نام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا. کلام. چلتے ہیں اگلے ثنا خان کی جانب. عدنان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ اسٹارٹ بہت اچھا ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور کیونکہ انہوں نے بھی آج کی ہائپ اچھی بنا دی ہے. اگلے ثنا خانوں کے لیے بھی تھوڑی مشکل ہے. بہرحال دیکھتے ہیں
शादी से अच्छी आवाज़। अगले सना खान सदर अगले फ़ोन है तरफ हमारी। हमारे साथ तंजीम मुश्ताक मौजूद हैं। जी तंजीम मुश्ताक, वालेकुम अस्सलाम, क्या सुनाएंगे आज आप? मैं पेश करूंगी सारे देख नालों लग दिया चंगिया मदीने दिया पाक गलियां। बिस्मिल्लाह पढ़िए। जग नालों लग दिया चंगिया मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गलियां, सारे जग नालों लग दिया चंगिया मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गलियां। जी अदानवी क्या कहेंगे आप? अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। बाकी तो रिजल्ट में देखते हैं, फिर वो अनाउंस उसमें करेंगे। लेकिन दिन पर अच्छा है, सारे सना खान अच्छे हैं, बस वो क्योंकि हमारी मजबूरी है कि जजमेंट करनी है, और वो हम इंशाल्लाह सेगमेंट के एंड में। अगले सना खान कौन है? अगले सना खान की तरफ चलते हैं। सैयद मोहित हमारे साथ मौजूद है। जी सैयद मोहित, क्या सुनाएंगे आप? बिस्मिल्लाह आता हूँ। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने, बेठिकाना बेठिकाना हुआ ज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को विरश का आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को विरश का आएगा, अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट गए, मुझे मर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर उतर जाने दे। माशरफ कलाम पेश किया। अगले सना खान कौन से हैं हमारे? सैयद मोहित से इससे पहले अभी हमारे साथ है मोहम्मद वाहिद कादरी। बिस्मिल्लाह, मोहम्मद कलाम वाहिद पेश कादरी, कीजिए। क्या कलाम पेश करेंगे आप? पेश बिस्मिल्लाह पढ़िए। मैं मदीने की गली को हर वक्त तस्वर में मदीने की गली को और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी को, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी को। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर,
कलाम पेश कर रहे थे, आप काजी हैं। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे अजान भाई, क्या कहेंगे जी, आप? बस मुझे ये लगा कि तलफ़ुज़ की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब हुई हैं, और पढ़त का तो फिर इंशाल्लाह हम एंड में अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन तलफ़ुज़ की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ थी। वो ठीक है, क्योंकि नात में जब हमें पॉइंट्स देने होते हैं तो हमें एक एक चीज़ सुर, ताल और अदायगी भी देखनी पड़ती है। ठीक है, चलते हैं अगला की जानिब। आज बिस्मिल्लाह। मोहम्मद यासिर हैं हमारे साथ। मोहम्मद यासिर क्या सुनाएंगे आप? सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह पर चुके हैं निशाने कदम, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों पेश किया इन्होंने। जी अजान भाई, अच्छा पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं रिज़ल्ट एंड में अनाउंस करूँगा। कुछ चीज़ें अभी हमें रुक के रखनी है। आज सना खान ज़्यादा है, इसलिए तेज़ी से हम अपने मनकबत खान और नौ खान आखिरी वक्त में अली रज़ा, हमारे आखिरी सना खान बिल्कुल इस मुकाबले के। अली रज़ा है। अली रज़ा, आज आप क्या पेश करेंगे अली भाई? बिस्मिल्लाह, पेश कीजिए। सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं, सदा टुकड़े मोहम्मद के अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं, सदा टुकड़े मोहम्मद के शहरे वो खुद आका अली उसका है दरवाजा, शहरे वो खुद आका अली उसका है दरवाजा, तो दरवाजे से आप और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं, सदा टुकड़े मोहम्मद के। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अदनान भाई, कौन से दो सना खान हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि आज हमारे पास लड़कियां नात ख्वान भी और लड़के भी हैं, तो लड़कियों में से मैं अलिशबा को चाहूँगा कि वो अगले मरहले में हमारे बहुत बहुत मुबारक हो अलिशबा। साथ आएँ, और लड़कों में मैं मुइज़ को चाहूँगा कि वो आगे हमारे साथ इस मुकाबले में सफ़र करें। अलिशबा फतेह मोहम्मद और सैयद मुइज़, ये दोनों हमारे आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत खूबसूरत महफिल सजी रही आज, और उलमा इकराम ने और सब शायर, मनकबत, उलमा इकराम और बहुत सारे हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी हमारे पास नाते मुकाबला है, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है थी, तो कुछ लोगों को हमने कहा कि बहुत शॉर्ट पीरियड में जो है वो मनकबत पेश करें। अब हम चलते हैं अज़ान फ़ज्र की जानिब। अज़ान फ़ज्र के बाद आएंगे और अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे, जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाते मुकाबला। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।
खुशामदीद नाजरीन। जश्न आमद सिब्त पैगम्बर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आज विलादत का दिन है, जिसके लिए खुसूसी नशरियात का आज इनकाद किया गया है। और आज का मौजू भी इमाम हसन बिल्कुल इमाम की हसन सीरत है। हमारा मौजू है, लेकिन अभी दूसरा सेगमेंट है जो कि शोरा और मनकबत का है। और हमारे पास दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले शायर अहले बैत हैं हमारे पास, जावेद मिर्ज़ा, आपका बहुत जावेद शुक्रिया मिर्ज़ा। आप यहाँ आए। दूसरे हमारे पास है मनकबत खां हैं ज़िया अब्बास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। और दो आवाज़- हमारी बहनें भी यहाँ पर आई बिल्कुल हैं। हमारी दो मनकबत बहनें खां। भी यहाँ पे मनकबत खां मौजूद हैं। एक तो नौरीन फातिमा और दूसरी हैं महविश जैदी। ये दोनों मनकबत पेश करेंगी। उससे पहले हम आते हैं मनकबत खां की जानिब, ज़िया अब्बास साहब की जानिब। ज़िया अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। मनकबत पेश करना चाहेंगे आप? कि ज़हूर के मौके पर मुबारक तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसी हवाले से चंद अशार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूँगा। सीनियर शायर साथ और जितने भी देखने वाले और सुनने वाले सीनियर्स हैं, उन तमाम से इजाज़त के साथ पेश कर रहा हूँ। तेग की सूरत कोई खामा खाता है, अली तेग की सूरत कोई खामा खाता है, अली की सूरत कोई संभल ले शाम के हाकिम हसन का वार आता है, संभल ले शाम के हाकिम हसन का वार आता है। मशीया इसको कहते हैं खुदा की ये कलम कागज़, मशीया इसको कहते हैं खुदा की ये कलम कागज़, जो कल हसन की सुल्हने ऐसे बिछाए जाल, हसन की सुल्हने ऐसे बिछाए जाल, नहीं जिसे जा भी जाता है फंसता जाता है, नहीं जिसे जा भी जाता है फंसता जाता है। विलायत मुर्तज़ा विलायत मुर्तज़ा मारिफत वो समंदर है, जो जितना डूबता है उस कदर महराज पाता है, जो जितना डूबता है उस
जो जितना डूबता है उस कदर महराज पाता है। सलामत रहिए, बहुत खूबसूरत कलाम। ज़िया भाई के बाद जावेद भाई आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह से परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है आपको। कोई मनकबत ख़्वान, कोई नवा ख़्वान ऐसा नहीं है कि जो आपके कलाम नहीं पढ़ता। मैं ख़ुद आपके लिखे हुए कलामों को पढ़ता हूँ। मौला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। आज का दिन 15 रमज़ान है, मौला की आमद का दिन है। क्या कहते हैं इस वबा के, देखें जिस माहौल में रमज़ान करीम को हम गुजार रहे हैं, इस महीने में जैसे शबान भी गुज़रा, उस तरह से नहीं हो पाया जैसे हम जश्न का इनाकात किया करते हैं लेकिन घरों में किया लोगों ने इसका एहतमाम। तो आप तो पाकिस्तान के हर कोने कोने पे जाके पढ़ते हैं, तो क्या देखा आपने इस वबा के माहौल में? अब्रार भाई, मैं गुजारिश करूँगा इस वबा के हवाले से कि ये वबा ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों पर नाजिल हुई है। जिनके अक़ीदे मज़बूत थे, ये वबा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और इसकी मिसाल हम इंशाअल्लाह अब देखेंगे आप ट्रांसमिशन में, अगले महीने, उससे अगले महीने में जो आएगा, इस वबा के ख़िलाफ़ भी लोग बोलेंगे। ये मसनूई मामलात थे, किसी हद तक कह सकते हैं कि इसमें कुछ सदाकत है, लेकिन ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जहाँ जहाँ हुआ इस पाकिस्तान में, ये वबा उस ज़िक्र की वजह से दूर हो गई। और वो बीमारी उन ज़ाकिरीन को, नात ख़ानों को, मनकबत ख़्वां हज़रात, उलमा हज़रात जो ज़िक्र में मसरूफ़ रहे, इस मरज़ ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों पर हमला किया इसने, और वाकई उन पे हमला करना चाहिए था। ईमान की कमज़ोरी जिसे कह सकते हैं। जी, वही है ईमान की कमज़ोरी। अब आप देख सकते हैं कि खाना काबा को बंद किया गया। मैं अपने ताई हैरान हूँ कि जहाँ से शिफा मिलती है, आबे ज़मज़म कायनात को शिफा देता है, आबे ज़मज़म बंद कर दिया गया। आपने बहुत अच्छी बात कही वबा के हवाले से। वाकई हमारा ईमान कमज़ोर है जब ये वबा हम पर नाजिल हुई है, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई वबा नहीं है जो हम मुसलमान पर इस तरह से असरअंदाज हो। खैर, आप अपना कौन सा कलाम जो आप पेश करना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अपना लिखा हुआ आज की मुनासबत से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कलाम पेश करूँगा, और एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो सामईन तक नहीं पहुँचते, उसकी मैं वजाहत करता चलूँ। जैसे अभी ज़िया अब्बास ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खामा। तो वो खामा जो है शायद कुछ लोगों तक ना पहुँचा हो। खामे से मुराद है कलम के, अरबी में उसको खामा भी कहा गया है। अच्छा। तो वो खामा इस्तेमाल किया गया, अरबी फ़ारसी शायरी में इस्तेमाल होती है। तो उस खामे को जब भी दोहराया जाए, क्योंकि ये लफ्ज़ खामा जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मनकबत में ज़रूर आता है, कलम या खामा। जी। तो ये खामा भी कलम है और कलम भी खामा है। तो आपकी मैं समाअत नज़र करूँगा, और इसकी रदी भी अबरार भाई कलम है। सना लिखे ना हसन की जो बार बार कलम, सना लिखे न हसन की जो बार बार कलम, तो वो है खाक कलम पाँव का गुबार कलम। क्या बात है, तो वो है खाक कलम। सना लिखे न हसन की जो बार बार कलम, तो वो है खाक कलम पाँव का गुबार कलम। कसम हसन की ये रखता है इख्तियार कलम। कसम हसन की ये रखता है इख्तियार कलम, कि नर को मादा बनाए 1000 बार कलम। ये रिवायत है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम की है कि सिर्फ एक इशारे से उन्होंने कहा, और वो शख्स जो था वो मर्द से औरत बन गया, जिनसी तब्दील हो गई। ये बिल्कुल, यानी तमाम सयासत्ता की किताबों में भी ये मिलेगा, और फिक़्ह जाफरिया की किताबों में भी आपको मिलेगा। कसम हसन की ये रखता है इख्तियार कलम, कि नर को मादा बनाए 1000 बार कलम। अमीर शाम से कहता था खौफ डर डर कर, अमीर शाम से कहता था खौफ डर डर कर, हसन के हाथ में लगता है जुल्फ़कार कलम। हसन के हाथ में लगता है जुल्फ़कार कलम। हसन के हाथ में लगता है जुल्फ़कार कलम। सलामत रहिए, आबाद रहिए। हसन के हाथ में, क्योंकि कलम ने वहाँ 2 काम किए।
जंग को ख़त्म किया जंग और में तलवार के सामने आया। क्या बात है। यानी जंग को ख़त्म करने के वाहिद कलम था जिसने तलवार की तरह काम किया। बिल्कुल तलवार की ताकत इस्तेमाल की। हसन के हाथ में लगता है जुल्फ़कार कलम। अच्छा जनाब, अगर चला है विलाए अली में कागज़ पर, अगर चला है विलाए अली में कागज़ पर, करेगा ख़त्म तेरी कब्र का फिशार कलम। क्या बात है, वाह वाह। करेगा ख़त्म तेरी कब्र का फिशार कलम। अगर हों शायर मौला हसन तो ये तय है, अगर हो शायर मौला हसन तो ये तय है, मेरा वक़ार कलम मेरा इख्तियार कलम, क्या बात है। मेरा वक़ार कलम मेरा इख्तियार कलम। और समझ रहे हैं कि किरतास पार करता है, समझ रहे हैं कि किरतास पार करता है। अमीर शाम के होता है आर पार कलम, अमीर शाम के होता है आर पार कलम। सरकार, अमीर शाम के होता है आर पार कलम। शजर को तेग बनाया अली ने मैदान में। सरकार, एक जंग ऐसी थी, रसूल खुदा भी साथ थे, जब मौलाए कायनात की तलवार टूट गई तो उन्होंने एक दरख्त को तलवार बना लिया, यानी उस दरख्त से जंग की। ये रिवायत मौजूद है तमाम किताबों में। शजर को तेग बनाया अली ने मैदान में, हसन के हाथ में बनता है जुल्फ़कार कलम। क्या बात है भाई, वाह, हसन वाह, के वाह। हाथ में बनता है जुल्फ़कार कलम। और वो खुश बहुत थे, छुरी से ज़बान काटी है। वो खुश बहुत थे, छुरी से ज़बान काटी है। पहो चुकी थी ज़बां से छुरी की धार कलम, पहो चुकी थी ज़बां से छुरी की धार कलम। और बहुत हसीन शेर है सरकार, आपसे दुआएं लेने के लिए। फिर उसकी नस्ल में मोमिन कोई नहीं होगा, फिर उसकी नस्ल में मोमिन कोई नहीं होगा, नहीं होगा। अली की तेग जो सर कर दे एक बार कलम, अली की तेग जो सर कर दे एक बार कलम। और शरीर इसको उठाए तो छीन लो मिर्जा, शरीर इसको उठाए तो छीन लो मिर्जा, कि शर के हाथ में होता है शर्मसार कलम, कि शर के हाथ में होता है शर्मसार कलम। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत, सलामत रहिए। आप तो लिखते ही आला हैं, और जो इस कलाम में इन्होंने एक वाक़ये को एक शेर के अंदर आपने उसकी तहरीर की है कि जिन्स तब्दील हो गई थी। बेशक ऐसा हुआ कि मौलाना ने फरमाया कि तुम औरत हो के मर्दों में क्या कर रहे हो, लेकिन जब खड़ा हो तो वो औरत बन चुका था, बन चुकी थी पहले बन चुका था, फिर बन चुकी थी। तो सदर चलते हैं हमारी दूसरी मनकबत खान की जानिब। बिल्कुल, दूसरी मनकबत खान हमारे पास साथ मौजूद है, नौरीन फातिमा, पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अताओ। सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत ट्रांसलेशन सजाने वालों के नाम एक किता है जो मैं पेश करूंगी। हसन जो महफिल सजाए बैठे दिलों में अपने मदीना बसाए बैठे, और किसी तेरी महफिल में आए बैठे, और इतनी अपूर्व सहर है। इस सहर में आज हम मौला की इस्तिग़ासा पेश करते हैं। छोटा सा इस्तिग़ासा है कि मौला आज की इस फजीलत जाए तो कहाँ जा तेरे दर के सिवा मौला, जाए तो कहाँ जा तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ पाए तेरे दिल के सिवा
दुनिया में है, इस दुनिया में है तेरे करम सोया मौला, दामन कहाँ फैला तेरे दिल के सिवा मौला, या हसन हम हो ये करम, या हसन हम हो ये करम, या इमाम हम पा हो ये करम, या इमाम हम पा हो ये करम, सिर्फ तेरे हो मोहताज हम, या हम पा हो ये करम, या इमाम हम पा हो ये करम, रिस्क जिस जहाँ में बटे सदका ज़हर हमको मिले, गैर हमको कुछ दे सके, बस ज़माने में इज़्ज़त रहे, आप रख लीजिए भर या हम पा हो ये करम, या इमाम हम पा हो ये करम, या इमाम हम पा हो ये करम, दिल में रहे ये बेकरारी, करबला चले अब कोई है तमन्ना मेरी बस यही, मौत आ जाए बस उसे घड़ी, सामने जब खुशी का हरम, मेरे करम करो मेरे मौला करम करम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। खूबसूरत आपका अंदाज, यकीन कीजिए मेरे एक एक अल्फाज आपके मेरे दिल में उतरने को बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन किराम, सिलसिला जारी है पढ़ने वालों का। आज हमारे स्टूडियो में कसीर तादाद में मनकबत ख़ान और नात ख़ान तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन हमने सबको वक्त देना है, इसलिए जितना मुख्तसर पढ़ेंगे तो हम सबको सुन सकेंगे। बिल्कुल। और आज 15वां रोज़ा है और मौला हसन की आमद का दिन भी है, बिल्कुल। और मौला की पहचान दस्तरखान से है, तो हमारा एक सेगमेंट है दस्तरखान, बिल्कुल, शायरी की तैयारी। आज देखते हैं कि क्योंकि रहमतें इस महीने में नाजिल होती हैं, बिल्कुल, बरकतें नाजिल होती हैं, तो देखते हैं कि आज हमारे मेज़बान कौन सी फैमिली के साथ इस शहरी का दस्तरखान सजाएंगे। आइए चलते हैं, आइए चलिए देखते हैं दस्तरखान। खुशामदीद नाजरीन, सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे थे मौलाना साहब से और आप बहुत अच्छी बात बता रहे थे। आपकी बात का दोबारा से आगाज़ वहीं से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनके कितने फ़ज़ाइल व मनाक़िब हम बयान कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह ने इनको कुरान मजीद का न सिर्फ़ हाफिज़ बनाया बल्कि मुहाफ़िज़ भी बनाया। बहुत खूबसूरत बात, वाह वाह वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बच्चों से अगर मोहब्बत करते थे तो इसलिए नहीं कि नवासे थे। मोहब्बत हुजूर पाक की अगर है तो इसका मतलब है खुदा की इजाज़त से है।
क्या बात वमा यंतिकु अनिल हवा के बहुत मिसदाक खूबसूरत हैं। बात है, ये बेशक, कलाम नहीं बेशक। करते, कोई काम नहीं करते, इनका बोलना भी अदल है, मर्जी खुदा के जी हाँ, अलावा। इनका चलना भी अदल है, इनका बैठना भी अदल है, इनका सोना भी अदल है, इनकी गुफ्तगू भी अदल है। तो सरकार से दोनों शहजादे अर्ज करते हैं कि नाना ईद है, ईद आ रही है, वाह नाना ईद है और हमारी सवारी नहीं है। तो आपने फरमाया आओ, क्या एक बात को है, वाह, इस वाह, कांधे पे सुभान सवार अल्लाह। किया, जो आप फरमा रहे थे कि कोई मुनफरिद वाकया, दूसरे को दूसरे कांधे पे सवार किया। अबरार भाई ने जुल्फे रखी हुई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहजादे कहते हैं कि नाना सवारी की तो मिहार भी होती है, हमारी मिहार कहाँ है? आपने आधी जुल्फे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दी, आधी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में। सुभान तो मैं यहाँ मौलाना एक जुमला कहा करता हूँ कि सरकार है रसूल, बेशक। सरकार की रिसालत की बागडोर हसनैन के हाथ में। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी रसूल पाक क्या चाहिए, बात है, वाह, रसूल वाह, पाक वाह। चाहिए तो हसनैन से मिलेंगे। क्या बात है, इसलिए वाह, कि वाह, रसूल पाक को अगर लेना है, उनकी तालीमात लेनी है तो इनके जरिए से इनके जरिए से मिलेंगे। दोनों के हाथों में जुल्फे हैं। मैं यहाँ एक जुमला कहा करता हूँ अक्सर मौलाना के, लोग नाम तो रख लेते हैं बच्चों का, हसनैन, मोहम्मद हसनैन, हसनैन अब्बास, हसनैन अली, लेकिन बाद लोगों को हसनैन की माना नहीं पता। हाँ लामा साहब, ये ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं इसमें एक जुमला कह दूं कि ये तस्नीये का सीगा है, ये ऐसे ही है जैसे सकलैन, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, ये ऐसे ही है जैसे ज़ोहरैन, नमाज ज़ोहर और असर, ऐसे ही है जैसे मगरिबैन, ऐसे ही है जैसे दारैन, ऐसे ही जैसे अमरैन, ये ऐसे ही है जैसे आप कह दें सकलैन। तो सकलैन का मतलब क्या है? कुरान और अहले बैत हम वज़न है, इसलिए सकलैन है। ज़ोहर और असर हम वज़न है, हम मिजाज है, हम फजीलत है, इसलिए ज़ोहरैन है। मगरिब और इशा हम वज़न है, हम मिजाज है, हम फजीलत है, इसलिए वो मगरिबैन है। ज़मीन व आसमान दारैन, ये हम वज़न है, इसलिए दारैन। नबी और अली अमरैन, इसलिए हम वज़न है। क्या बात, कुरान और अहले बैत सकलैन, इसलिए हम वज़न है। क्या बात अब आगे खूबसूरत बात है, वाह वाह। हसनैन कहते हैं हसन और हुसैन को मिलाकर। क्या बात है, मिला दिया हसनैन, क्या कहने, वो मिला के हसनैन है। तो जैसा मिजाज इमाम हसन का है वैसा ही मिजाज इमाम हुसैन का है। अब कोई ये ना कह दे इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की, इसलिए कि अगर इमाम हसन की जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते तो ये भी सुलह करते, अगर इमाम हुसैन की जगह मौला हसन होते तो वो भी जंग करते, इसलिए कि हसनैन के मिजाज में फ़र्क नहीं है। बाज़ लोगों ने रिवायतें लिखी हुई हैं कि दोनों भाइयों में कभी नाउज़ुबिल्लाह नाचाकी हो नहीं सकती, इसलिए कि इन दोनों का मिजाज एक जैसा है। तो आधी जुल्फ़े इनके हाथ में, आधी जुल्फ़े इनके हाथ में। अब मैं सवाल करूंगा देखने वालों की खिदमत में कि अगर मौला हसन ये चाहें कि मेरी सवारी मशरिक़ की तरफ चले और मौला हुसैन ये चाहें कि मेरी सवारी मगरिब की तरफ चले, तो सवारी तो एक है, सवार दो है, कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ, समझाना हसनैन का मतलब ही ये है कि इनके मिजाज में फ़र्क नहीं है। जहाँ हसन जाना चाहेंगे वहीं हुसैन जाना चाहेंगे। क्या बात है, वाह वाह। जहाँ हुसैन जाना चाहेंगे वहीं हसन जाना चाहेंगे। क्या बात तो है, इसलिए दोनों शहजादे हसनैन हैं। और उस वक्त शहजादों ने ये भी अर्ज़ की, नाना सवारी तो बोलती भी है, तो आपने ऊँट की आवाज़ से मिलती हुई आवाज़ निकाली, अल अफ, ऊँट जैसे बोलता है अल अफ। अलफ का मतलब कि दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा। मलाइका ने इबादत छोड़ दी कि नबी कायनात फरमा रहे माफ़ फरमा। आवाज़ कुदरत आई है मेरे हबीब, अब बच्चों की मोहब्बत में तीसरी मरतबा मत कहिएगा, वरना मैं जहन्नुम को हमेशा के लिए खत्म कर बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बात कही ओन मोहम्मद नकवी साहब आपने। अब आते हैं मौलाना साहब के। मौलाना साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि हसन हुसैन हसनैन, इन दोनों की सोच एक जैसी, मिजाज एक जैसा, सफ़र एक ही, तो इन दोनों में इतने इनके मिजाज में जो यकताहत थी वो कैसे? इसलिए कि ये दोनों रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की, जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि हिल्म और शुजाअत के वारिस थे, ज़ाहिरन भी और बातिनी एतबार से भी। और जब तरबियत आगोश रिसालत में, आगोश बतूल में, आगोश हैदर करार में हुई हो, तो फिर इस चीज़ से ये बात तय हो जाती है कि इन दोनों के मिजाज किस मिजाज के परतव होंगे, सरवर कौनो मकान के, क्योंकि ये वारिस हैं, लिहाजा इनके मिजाज भी एक दूसरे जैसे हैं। अब दुनिया ये कहती है, जैसे क़िबला ने भी ज़िक्र फरमाया कि एक ने सुलह की, एक ने जंग की,
लेकिन जैसे किबला फरमा रहे थे कि इमाम हुसैन अगर होते इमाम हसन की जगह पर वो भी सुलह करते, या इमाम हसन होते करबला में वो भी जंग करते। अब आप देखें तारीख़ गवाह है कि जब इमाम हसन की शहादत के बाद 61 हिजरी में वाक़या करबला होता है, अब लोग ये बहस करें कि इमाम हसन होते तो सुलह करते या जंग करते। ये सोचना चाहिए कि इमाम हसन ने जो तावीज़ लिख कर दिया था कि मुसीबत के वक्त इसको खोल कर पढ़ना, वो आशूर के रोज़ जब इमाम हसन के शहज़ादे ने पढ़ा है तो वो तहरीर करबला में इमाम हुसैन के इक़दामात को ताईद हसन है। वाह वाह वाह। कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनकी ताईद की है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन इसलिए भी शबीह पैगम्बर ज़ाहिर और बातिनी एतबार से हैं कि आगे पूरा निज़ाम विलायत कायनात में इन्हीं दो शहज़ादों से चलना था। बेशक इसमें क्योंकि निज़ाम विलायत के आका मौला सैयद व सरदार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैं, और मौला अली मुश्किल कुशा के बाद विलायत का निज़ाम इन्हीं दो शहज़ादों के ज़रिए है। कहीं से आप किसी सूफ़ी तरीक़े को शजरे को ले लें, वो शजरा जब तक हैदर कर्रार की बारगाह में ना पहुँचे उस वक्त तक वो शजरा तरीक़त नहीं है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है अल्लामा साहब के कोई भी पीर हो, जो आजकल पीर इतने सारे हैं, लेकिन जब तक मौला कायनात की खुशनुदी हासिल उनको नहीं होगी जब तक वो पीर नहीं बन सकता। अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत बात कही मौलाना साहब ने। तो मौला हसन का दस्तरखान भी बड़ा वसी है कि हर घर में वो जी हाँ, सुभान अल्लाह, बर्पा किया जाता है दस्तरखान को। उस दस्तरखान की फजीलत बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अभी फरमा रहे थे विलायत के जितने भी सिलसिले हैं वो सब के सब जाकर मौला अली अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम के यकीनन जो पहले बेटे हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। और जहाँ तक सवाल है दस्तरखान का, तो ये ख़ानदान जो है वो सखियों का ख़ानदान। अभी वक्फ़े के दौरान हम बात कर रहे थे, मौलाना फैसल अजीज़ साहब ने बड़ी अच्छी याद दहानी कराई कि इस खानवादे में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो वैसे तो सभी सखी हैं, यानी इनके दरवाज़े पे कोई खाली नहीं जाता। अच्छा, इस खानवादे में एक अजीब व गरीब बात है, ये किसी सवाल के जवाब में ला नहीं कहते। यानी कोई सवाल कर ले, चाहे इल्मी सवाल हो, माली सवाल हो, किसी किस्म का सवाल हो, ये ला नहीं कहते। यानी कभी किसी सवाल के जवाब में इनके यहाँ ला नहीं है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दस्तरखान वसी था। आप बग़ैर किसी मेहमान के साथ बग़ैर खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान ना हो। इसी तरह से जनाब हाशिम जो इनके दादा हैं और परदादा हैं, उनका जो है दस्तरखान मशहूर था। और इस खानवादे में एक अजीब रिवायत अल्लामा साहब मैंने पढ़ी कि शहज़ादे अली अकबर का जो दस्तरखान था वो मशहूर था। अच्छा जी, शहज़ादे अली अकबर का दस्तरखान, और मेरे पास किताब मौजूद है, उसमें लिखा है कि अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई शख्स मिजाज का सखी होता था और वो बग़ैर किसी मेहमान के खाना नहीं खाता था, तो वो क्या करते थे कि अपने घर के बाहर थोड़ी सी आग रोशन कर देते थे कि यहाँ से गली से गुज़रने वाला अगर कोई भूखा हो तो समझ जाए कि इसके घर वाले जो हैं, इस घर के जिसके आग इस घर में सामने जल रही है, वो खाना खिलाना चाहते हैं, मेहमान नवाज हैं। तो वो जाके दरवाज़ा बजा देता था और कहता था कि जनाब मैं भूखा हूँ, आपने निशानी लगाई हुई है, और उसको इज़्ज़त से बिठा के वो खाना खिलाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाल शहज़ादे अली अकबर के हुजरे के सामने 24 घंटे आग रोशन रहती, 24 घंटे, 24 घंटे, यानी जो जिस टाइम आए दरवाज़ा बजा ले, खाना खा ले, खाना मिल जाएगा। तो ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की एक अलहदा मुनफरिद फजीलत है। और वो क्योंकि भतीजे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, मैं सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि 1400 साल से आज भी मदीने में जारी है, आज भी। यानी आप उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, इंशाअल्लाह आप वहाँ एक बुज़ुर्ग आलिम का मज़रा है, मज़रा यानी एक बाग है, उसमें मशहूर है, वहाँ किसी से पूछ लें मज़रा आमरी, मज़रा आमरी, किसी से भी मदीने में पूछ लें, आयतुल्लाह आमरी एक बड़े आलिम थे, वहाँ चले जाएं, वहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान 24 घंटे जारी है। अच्छा, वही आग का सिलसिला अभी तक? आग का तो नहीं है, क्योंकि अब ज़माना बदल गया, क्योंकि अब वो आग लगाएंगे तो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो उसी के घर को आग लगा देगी, लिहाजा अब जो है वो ज़माना बदल गया है।
अब जो है वो जदीद दौर है, लिहाजा लोगों को पता है कि जनाब कहाँ पर जो है वो दस्तरखान की आपको जो है वो तपिश मिलेगी, लिहाजा और वहाँ जाते हैं। आयतुल्लाह आमरी के वहाँ मैं 21 हज कर चुका हूँ, कितने उम्रे कर चुका हूँ कि हम जब भी वहाँ जाते हैं तो वो दस्तरखान आज भी मंसूब है, और उस दस्तरखान में बाग़ फ़िदक की खजूरें खिलाई जाती हैं, बाग़ फ़िदक के अंगूर खिलाए जाते हैं, और उसमें मुनफरिद जो एक बाग़ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने लगाया था उसके मेवे खिलाए जाते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सलमान फ़ारसी के ज़रिए से बाग़ लगवाया था उसके मेवे खिलाए जाते हैं। तो आज भी दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम जारी है। मैं गुजारिश करूँगा सुनने वालों की खिदमत में कि आपकी कोई मुसीबत है, रोज़गार नहीं मिल रहा, बेटा नहीं हो रहा, बच्ची की शादी नहीं हो रही, आप नज़र मानें दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की और वो मुराद पूरी होगी। फिर वो दस्तरखान सजाएं, लोगों को खिलाएं ताकि ये सिलसिला जारी हो सके। अच्छा अलावा साहब देखें कितनी खूबसूरत बात है कि ये नवासे रसूल हैं, ये भी हम शक्ल पैगम्बर थे, सुभान और शहज़ादे अली अकबर उनको भी शबीह पैगम्बर कहा जाता था। कहानी थे बिल्कुल, यानी मदीने के बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते थे तुमने रसूल पाक की ज़ियारत नहीं की, तुम्हें ज़ियारत करनी है तो जाओ दरवाज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम पे, दरवाज़ा सुबह सुबह बजाना, और जिस बच्चे की चेहरे पे निकाब लगी हो उससे कहना ज़रा निकाब हटाएं, हम रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं। आपकी तरफ आएंगे, जन्नत के कपड़े का भी जिक्र है, इस हवाले से भी थोड़ी मालूमात दीजिएगा। ईद का मौका था और शहजादों ने जब अपने लिबास के लिए सैयदा कायनात से अर्ज़ की, सैयदा कायनात ने फरमाया कि तुम्हारा लिबास दर्जी को सिलने के लिए दिया है, और दरवाज़े पे दस्तक हुई। ये बहुत तवील रिवायत है, मैं उसका एक जुज़ पेश कर रहा हूँ। दरवाज़े पे दस्तक हुई और पूछा गया कौन, तो आने वाले ने कहा कि मैं हसनैन का दर्जी। वो ये नहीं कहा कि मैं जिब्रील अमीन हूँ, जन्नत से जोड़े लाया हूँ, मैं जिब्रील अमीन हूँ। ये भी नहीं कहा कि मैं फ़रिश्तों का सरदार हूँ, और ये बात तो खैर समझ में भी आती है कि ये नहीं कहा कि मैं फ़रिश्तों का सरदार हूँ। किसी और जगह बात बन जाती, इस घर पे आके क्या बोलते, जहाँ पे बच्चा बच्चा सरदार है, यहाँ पर लेकिन ये तो कह सकते थे ना मैं जिब्रील हूँ। ये भी नहीं कहा कि मैं, इसलिए कि उनके लिए आज ना जिब्रील होना फ़ख्र है, ना फ़रिश्तों का सरदार होना फ़ख्र है, ना मुअल्लिमुल मलकूत होना फ़ख्र है। उनका नाज आज ये है कि मैं ज़हरा के बच्चों का दर्जी हूँ। क्या बात कि भाई क्या कहने अलावा साहब, सलामत रहिए, बहुत दिल नहीं चाह रहा आपने, मैं कमाल बात कर दी क़िबला साहब, सलामत रहिए आप। आइंदा भी आपको मौका देंगे हम लोग अपने चैनल में आने का, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे आप दोबारा आएँ और हमारे अवाम को इन इल्म से आगाह करें जो इन्हें नहीं मालूम है। आपने बहुत बड़ी बड़ी मालूमात, बहुत अच्छी मालूमात उन तक पहुँचाई, मुझ तक भी पहुँचाई आपने। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह इज़्ज़त दे इंशाअल्लाह। वक्त दिया। इंशाअल्लाह बातों का सिलसिला जारी है और अगले सेगमेंट का भी आगाज़ होगा, लेकिन और अभी एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करेंगे वक्फे के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। खुशामदीद नाज़रीन, खुशामदीद। सदफ कितनी खूबसूरत बातें चल रही हैं। सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। जी हाँ, बहुत खूबसूरत बातें हो रही थी और आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। अब हम आएंगे मौलाना फैसल अजीज़ बंदगी साहब के पास और आपसे मैं पूछना चाहूँगी, इमाम हसन लौहे महफूज का मुताला किया करते थे, उस हवाले से आवाम को आगाह कीजिएगा। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके लिए लोहे महफूज किया, पूरी कायनात वो आपकी निगाहों के सामने खुली हुई है, इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़ाहिर के इमाम नहीं है बल्कि बातिन के भी इमाम है। कोई शय जो हमारे लिए गायब है उनके लिए वो भी शहूद है। तो इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके से तो कुछ पोशीदा और कुछ मख्फी नहीं,
اور یہ اس گھرانے کے فرد ہیں کہ جن کے لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا حلم حسن کو دیا اور اپنی شجاعت حسین کو دی. جو ذات حلم رسول کی وارث ہو تو اس سے کیا مخفی ہو سکتا ہے، اور اس کے سینے کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. اور اس میں بھی ایک حدیث مبارک سے اس کو اگر اور جوڑ دیں تو ایک تطبیق ہو جائے گی. ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا تو یہ کہ حسن میرے حلم کا وارث ہے، حسین میری شجاعت کے وارث ہے. ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حضور نبی اکرم کے وصال کے بعد سرکار کو دیکھنے کی بڑی دل کرتا تھا تو وہ امام حسن کو اور امام حسین کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ سر سے سینے تک امام حسن شبیہ پیغمبر اور سینے سے قدموں تک امام حسین شبیہ پیغمبر. اب وہ جو حدیث ہے حسن میرے حلم کا وارث ہے، حلم کا مرکز سینہ ہوتا ہے، اور حسین میری شجاعت کا وارث ہے. شجاعت کا تعلق ہے پائے استقامت سے، پائے استقلال سے. اس کی علامت قدم ہوتے ہیں، ثبات قدم، اور امام حسین کے قدم رسول اللہ کے قدموں جیسے، امام حسن کا سینہ رسول اللہ کے سینے جیسا. تو جو سینہ رسالت کا حلم تھا وہ امام حسن علیہ السلام کو عطا ہوا. مولا حسن صبر ان کو اتنا صبر کرتے تھے یہ کہ اگر کوئی ان کو کچھ بھی کہتا تو اس کا جواب اس کو پیار سے دیتے. بالکل ایسے کئی واقعہ علامہ صاحب اگر ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں ان میں سے کوئی ایک واقعہ. امام حسن علیہ السلام کے صبر پر تاریخ گواہ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شام سے تحائف بھیجے گئے، بڑی لمبی قطار آئی تحائف کی کہ یہ امام حسن کو ہدیہ کیے جائیں. امام حسن اس وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جب امام حسن کے پاس وہ اونٹوں کی قطار مدینہ پہنچی ہے. امام حسن اٹھے تو ایک حبشی غلام نے امام حسن کی نالین مبارک امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھ دی. امام حسن نے نالین پہنی، باہر نکلے، انہوں نے بتایا کہ یہ ساری قطار آپ کے لیے تحفہ ہے، شام سے آئی ہے. تو امام حسن نے فرمایا کہ یہ سارے تحائف، پورے اونٹوں کی قطار جو کچھ ہے یہ سب اس حبشی غلام کو دے دو. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے ہے. فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ حبشی غلام کو دے دو، اس لیے کہ اس نے ہم سے حسن سلوک کیا، ہماری جوتیاں اٹھا کر سامنے رکھی ہیں. وہ سارے تحائف امام حسن کی نالین کا بدل نہیں تھے، نالین کھانے کا بدل تھے. بڑی اچھی کیا گفتگو، کیا بات ہے. مولانا فیصل عزیزی صاحب نے فرمائی. اگر اجازت دیں تو ایک جملے کا اس میں گویا اضافہ تو نہیں کہوں گا، لیکن جسارت ہے کہ بخاری شریف کی دوسری جلد میں روایت موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام 4 دن کے تھے، صرف 4 دن کے، 40 دن کے نہیں، 40 سال کے نہیں، 4 دن کے. تو اپنی مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، 4 دن کے بچے. اس گھر کی جو کنیز ہیں بی بی ام ایمن، اس گھر میں کئی کنیزیں ہیں، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، بی بی اسما بنت امیس، بی بی ام ایمن. تو بی بی ام ایمن نے آگے بڑھ کے عرض کی آقا زادی یہ آپ کے لال مسلسل آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. یعنی روایت میں بخاری شریف میں جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ یہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آنکھوں میں آنکھیں جھپک نہیں رہی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مسکرا کے فرماتی ہیں کہ میرا 4 دن کا لال لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا. یہ قرآن کی آیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے اس کا علم امام مبین کے پاس. سطح زمین سے لے کے عرش اولا تک جو کچھ بھی ہے اس کا علم امام مبین کے پاس ہے. اچھا، بعض علماء نے اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ
इमाम मुबीन से मुराद लौह महफूज। हम उनकी खिदमत में बुखारी शरीफ की ये रिवायत पेश करते हैं कि अगर इमाम मुबीन है लौह महफूज मान लेते हैं क्योंकि हर चीज़ उसके अंदर है, उसे क्या कहेंगे जो 4 दिन का उसका भी आलिम होगा? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। उसे क्या नाम देंगे? क्या बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि लौह महफूज इमाम मुबीन हो सकता है, लेकिन उस इमाम मुबीन का भी इमाम वो होगा जो उसका आलिम होगा। क्या बात है भाई, क्या कहने, क्या खूबसूरत बात है। बहुत अच्छी वाह, बात वाह, वाह, अभी मौला के वाह, वाह, वाह। सखावत के हवाले से कि मौला ने किस तरह से ऊँटों की कतार जो है वो अता कर दी। बहुत अच्छी बात हमारे मौलाना इंतहाई फाजिल शख्सियत हैं फरमाया। लेकिन क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए जो बहुत अच्छी रिवायत आपने पढ़ी, मुझे भी उससे एक बात याद आ गई कि आप सर ता सीना या नाफ या पेट, जो मुख्तलिफ रिवायतें बाद में कि नाफ तक, बाद में सीने तक, तो शबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी फैसल साहब ने फरमाया। और पेट से लेके पैरों तक शबी हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल पाक की। अच्छा, ये ऊपर के हिस्से में हाथ आते हैं, नीचे के हिस्से में पैर आते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हाथों से नबी पाक की सुन्नत पे अमल करते हुए सुलह की। क्या बात है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैरों से चल के जंग की। क्या बात है। क्योंकि रसूल पाक ने पैरों से चल के जंग की थी, तो रसूल पाक ने सुलह की थी, सुलह हुदैबिया मौजूद है। बेशक बेशक। इसी तरह से मौला हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैरों से जंग की, क्योंकि नबी पाक ने पैरों से चल के जंग की थी। तो नबी पाक की मुजस्सम शबी ये दोनों शहजादे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इल्म हो, हिल्म हो, शुजाअत हो, बुलंदी हो, बंदगी हो, हर चीज़ में ये अपने नाना की शबी है। अल्लामा साहब, इसीलिए तो नाना ने भी इनकी कोई बात को टाला ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ भी कहा दिया। चाहेंगे आगे सुलह हुदैबिया की बात की इन्होंने, बहुत अच्छी। आप सुलह हुदैबिया के बारे में बता दें कि उसकी तारीख क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सुलह हुदैबिया को सुन के आवाम के जहन में एक बात आई होगी कि ये क्या चीज़ है, और हो सकता है कोई इससे जानते ना हो, इस्तिफादा हासिल कर सके। हुदैबिया कुफार से हुई थी। हुदैबिया के मकाम पर, ये मक्के से 80 किलोमीटर पे ये एक मकाम वाक़ है, और इसमें जो शराइत तय हुई थी वो बड़ी दूर अंदेशी थी पैगंबर की, कि उस वक्त सहाबाए किराम भी उसकी दुरुस्त तफहीम नहीं कर पाए थे, और सहाबाए किराम भी ये सोच रहे थे कि ये कैसा सुलहनामा है, और आने वाले वक्त में फिर उसके समरात सामने आए तो फिर पता चला कि इल्म पैगंबर बहरहाल इल्म पैगंबर होता है। बेशक बेशक। मैं आपने सुलह हुदैबिया का कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ सुलह हसन पर मैं क्योंकि जब सुलह की बात हो तो सुलह हसन उसका तस्करा हमारे यहाँ अमूमन वो एक बहस मुबाहिसे का शिकार हो जाता है। इसमें एक बड़ी क्लियर बात है। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल है। उस 30 साल की ये जो रिवायत है, इसको कई सिहाए सित्ता के मुहद्दिसीन ने बयान किया, और फिर सिहाए सित्ता से अहादीस मुरतब करके साहिब मिशकात ने इसको बयान किया। मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मौला अली की शहादत के बाद खिलाफत राशिदा के मनसब पर बैठे तो 6 माह बाकी थे वो 30 साल का अरसा पूरा होने में। अच्छा। जब वो 6 माह का अरसा मुकम्मल हो गया तो अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके दस्तबरदार हो गए, क्योंकि इमाम हसन जानते थे ये राशिदा 30 साल तक है। वाह वाह वाह। खिलाफत राशिदा 30 साल तक है, रुश्द वाली। इसके बाद मलूकियत का आगाज़ होगा। तो इमाम हसन जब तक तख्ते इक़्तिदार पर रहे, ये तख्त खिलाफत राशिदा था। लेकिन जिस दिन इमाम हसन दस्तबरदार हुए, फिर ये तख्त खिलाफत राशिदा नहीं रहा। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का कमाल है, और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तदब्बुर भी है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मलूकियत का बानी ख़ुद को नहीं बनाया, बल्कि खिलाफत राशिदा का आखिरी खलीफा होना पसंद किया। अच्छा, दोनों नवासों को ये मर्तबा हासिल है कि रसूल खुदा ने ख़ुद कहा हुसैन व मिन्नी व आना मिनल हुसैन। अगर बड़े भाई के लिए तो छोटे भाई के लिए भी, और कभी औलाद अता कर दी किसी को। मतलब अल्लामा साहब कोई हमारे नाज़रीन को ऐसी बात बताइए कि जिससे हमें एक मैसेज भी मिले मौला कायनात की मर्तबत
ان کی حیثیت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ ان کی کوئی ایسی بات ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جس سے ہمیں ایک میسیج بھی موصول ہو. دیکھیے اجازت ہے مولانا، عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے لال امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں. کیا مطلب کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب ہے کہ صلح کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو مطلب ہے جنگ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اگر کھڑے ہوئے ہیں تو جنگ کر رہے ہیں، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو صلح کر رہے ہیں. ابھی بڑی اچھی بات فرمائی فیصل بھائی نے. گزارش یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں ایک بہت اچھا پوائنٹس تھا، اور ساری اس کے پوائنٹس جو تھے وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تو ظاہر ہے کہ پابند وہی ہیں. اس میں ایک یہ تھا کہ دشمن کا، کفار کا اگر کوئی سپاہی جنگجو ہمارے ہاں آ جائے گا، ہم اسے جلدی واپس کر دیں گے، ہم اسے قید کر کے نہیں رکھیں گے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اور اگر تمہارا کوئی آ جائے گا یہاں تو ہم اسے جلدی واپس، ہمارا کوئی وہاں چلا جائے تو تم اسے بے شک رکھ لینا. اچھا. یعنی یہ ایک عجیب روایت ہے. اگر حضور پاک سے جو معاہدہ ہوا کہ اگر ہمارا کوئی جنگجو تم پکڑ لو تو اسے بے شک رکھ لینا، قید کر لینا، اور تمہارا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیے یہ کیسی عجیب بات ہے. اس پر جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے بعض صحابہ کرام نے گویا لب کشائی کی کہ سرکار یہ کیسی صلح ہے کہ ان کا آئے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا جائے گا تو وہ رکھ لیں. تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر اس کا آگے چل کے انا فتحنا لکا فتح مبینہ کی آیت نے ثابت کیا کہ حضور پاک کی جو حکمت تھی وہ حضور کی تھی. کیا کہ جب ان کا کوئی بندہ یہاں آتا تھا، حضور کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. واہ واہ واہ. بہت اہم بات ہے. اور پھر جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا. یہاں کا جب وہاں جاتا تھا تو حضور کا اخلاق بیان کرتا تھا، وہاں کے لوگوں کو مسلمان کر لیتا تھا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو یہاں والا وہاں جا کے مسلمان کرتا تھا، اور وہاں والا یہاں آ کے مسلمان ہو جاتا تھا. کیا بات ہے. تو اس چیز کو اللہ نے فرمایا کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ، کہ ہم نے ایسی مبین فتح عطا کی صلح حدیبیہ کی صورت میں. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بڑے اچھے نکات فرما رہے تھے کہ شام کے حاکم نے خالی پیپر بھیج دیا تھا کہ آپ اس پہ جو چاہیں شرائط لکھ لیں. اور امام حسن علیہ السلام نے جو پہلی شرط لکھی تھی وہ یہ تھی کہ کتاب و سنت پہ عمل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت پہ عمل نہیں ہو رہا تھا تو لکھ رہے ہیں کہ کتاب و سنت پہ عمل کیا جائے گا. فرمایا تھا کہ علی اور اولاد علی پہ سب و شتم نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے علی اور اولاد علی جن کی قرآن میں شان موجود ہے ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا. اپنے بعد یزید کو یا کسی کو بھی حاکم مقرر نہیں کرے گا، اور وہ حاکم اس نے مقرر کیا، اس کا مطلب ہے شرائط پہ عمل نہیں ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے کیونکہ نبی پاک کا پرتوں ہیں، نبی پاک کا سایہ ہیں، نبی پاک کا نور ہیں. تو جو آپ فرما رہے تھے کہ کوئی اہم بات بتائیں، تو اگر اجازت دیں تو ایک اہم بات میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ دونوں شہزادے اکثر عرض کرتے تھے کہ نانا علامہ صاحب یہیں سے وقفہ لینا ہے. بسم اللہ. کیونکہ بات بڑی خوبصورت ہے تو ہم ناظرین کو بھی تھوڑا سا سسپینس میں رکھیں گے. خوبصورت ہے. اور ملتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، علامہ صاحب کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی بالکل. چھوٹے سے وقفے کے بعد. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہوگا غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہوگا غافل انسان. خوش آمدید ناظرین. مرحبا مرحبا مرحبا. آمد نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ کی آج کی خصوصی ٹرانسمیشن انہی کے دن سے مسلک کی گئی ہے. صدر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی بالکل. انوار رمضان کی سیر ٹرانسمیشن میں آپ کو میں بھی خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کے صدف شمس ہوسٹ آپ کے ساتھ ہے. آج نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اور آج کے دن میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں،
اور ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں اون محمد نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا فیضل عزیز بندگی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان دونوں سے بات کریں گے اور بات کر کے جانیں گے کہ ولادت امام حسن کے حوالے سے کیوں ابرار، اور کیا جاننا چاہیں گے اور آپ کیا بتانا چاہیں گے ان کو؟ صدر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیرت صراط المستقیم، بالکل علامہ صاحب ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب امام حسن امام حسین چھوٹے سے تھے اور مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر نبی کریم کے بہت بوڑھے صحابی تھے جو وضو بنا رہے تھے، تو ذرا تھوڑی سی عطا کیجیے گا کیا وہ قصہ تھا؟ بڑا خوبصورت انداز تھا مولائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انوار رمضان کے اس پروگرام میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سورہ کوثر کی عملی تفسیر بنایا ہے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب 2 فرزند اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے کہ جس طرح سے آپ کی اولاد گویا انتقال کر گئی، اسی طرح سے آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے باتیں کر رہی ہیں، تو رسول پاک نے ادھر ادھر دیکھ کے فرمایا کہ اے خدیجہ، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو اس وقت بیوی فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ کفار و مشرکین کی عورتوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتی، میرے پاس نہیں آتی آپ سے شادی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر آئے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ جو بچہ ہے یہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہوگی، اس کا قرآنی نام کوثر ہوگا اور زمینی نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوگا۔ اور جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے یہاں پہلی اولاد ہوئی جسے امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو نبی پاک کو جب خبر دی گئی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا اور بوسہ پیشانی پر دینے کے بعد پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب دہن گویا مولا حسن علیہ السلام کو غذا کے طور پہ عطا فرمایا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا کہ یہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر میرا لال ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کا نام کیا رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نبی پاک سے سبقت نہیں کر سکتا۔ جب نبی پاک کی خدمت میں بی بی نے فرمایا کہ اے بابا آپ اس کا نام کیا رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو جنت میں چھپا کے رکھا تھا، یعنی اس سے پہلے اس نام کا انبیاء میں، اولیاء میں، اوصیاء میں کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ تو اس طرح سے ہم تھوڑی سی، اس لیے میں نے ابتداً عرض کی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا نام نہ امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا میں پہلے کسی کا تھا، نہ امام حسن علیہ السلام کا نام دنیا میں پہلے کسی سے تھا۔ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا طریقہ تبلیغ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ولادت کا پروگرام ہے بچپن سے ہی، ہاں وہی عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات آپ کا سوال کیونکہ تبلیغ کے حوالے سے تھا، لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ شہزادے منفرد ہیں، یعنی اللہ نے ان کو منفرد بنایا۔ دونوں بھائی بچپن ہی سے جس انداز سے محبت اور خلوص کا اظہار فرماتے تھے، اس کی یہ جو آپ نے سوال کیا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہیں وہ وضو فرما رہے تھے۔ دیکھیے ہمارے ہاں مصر سے، شام سے، عراق سے، ایران سے طلاب سعودی عرب سے پڑھ کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ ہوتے ہیں کم سن، یعنی طالب علم جو وہاں سے پڑھ کے آئے۔ اب آ کر اگر کسی بزرگ کو وہ تبلیغ کریں تو بزرگ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ناراض ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم دین حاصل کر کے آئے ہیں،
क्योंकि फजीलत अल्लाह ने उम्र को नहीं दी है, इल्म को अता की। इसलिए अगर कोई कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो नहीं जानता तो उसे जानने वाले से पूछना चाहिए। अभी मौलाना फैसल अजीज़ साहब ज़ाहिर है कि एक नौजवान आलिम है, अब इनसे कोई बुज़ुर्ग सवाल करे तो उसे चाहिए कि वो अदब से सवाल करे, चाहे वो अपने इल्म की, अपने उम्र की वजह से बुलंद है, लेकिन इल्म की वजह से। तो दोनों शहजादे कम सिन हैं, देखा कि नाना के बुज़ुर्ग साहबी वज़ू कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, तो दोनों ने उनको डांट डपट नहीं की, उनसे कोई सख्त जुमला नहीं कहा, बल्कि अब जुमला सुनिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देख के कहा कि भैया ज़रा ये देखिए कि मैं सही वज़ू कर रहा हूँ। जुमले देखिए, ये नहीं फरमाया कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उनको दिखाने के लिए, इसलिए नहीं, इसमें एक बारीकी देखिए। अगर ये फरमा देते कि भैया ज़रा देखें मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो आज का तारीख का मुतासिब मौरिख ये लिख देता कि गलत कर सकते थे तो लफ्ज़ गलत कहा। क्या कहने, इसलिए आपने जुमला भी इंतखाब क्या किया कि भैया देखिए मैं वुज़ू सही कर रहा हूँ, क्या कहने, सही तो करेंगे ही आप, यानी जुमला भी ये नहीं फरमाया कि मैं वुज़ू गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो कहा कि भैया देखिए मैं वुज़ू सही कर रहा हूँ, तो सही तो आप करेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वुज़ू किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी वुज़ू किया, और वो बुज़ुर्ग सहाबी खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है कि नबूवत और इमामत को कहाँ रखा है। कितनी इख्तिसारी और इतनी आजिज़ी से उन्होंने उनको बता भी दिया कि आप वज़ू गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको बताना का तरीका देखिए आप कि उसकी दिलाजारी नहीं हो, जी हाँ, कि अगर वो, क्योंकि बच्चे थे वो कह सकते थे कि तुम बच्चे हो, जी हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मौलाए कायनात से आके दस्तबस्ता देखिए गुजारिश की कि आप सही। सहाबा किराम भी जानते थे हम कितने ही बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन हम तालिबे इल्म हैं, अहले बैत कितने ही बच्चे क्यों ना हो, वो आलिम है। बेशक बेशक, क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपके अकीके के हवाले से बताएंगे कुछ अवाम को, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि आपका अकीका किस तरह से हुआ था। देखिए अकीका सबसे पहले क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हुआ इस ख़ानदान में, इसलिए जो अकीके का तरीका हमारे यहाँ राइज है, जो लिखा हुआ है कि 7 दिन, जब 7वें रोज़ जो है वो बच्चे का अकीका होना चाहिए, उसके बाल कटवाए जाते हैं। इसी तरह से एक बकरा या चांदी के हम वज़न, जी हाँ, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, वो जो बाल होते हैं उनके बराबर चांदी के वज़न के बराबर पैसे भी दे सकते हैं, चांदी भी दे सकते हैं। अच्छा, तो उस ज़माने में क्योंकि सिक्के जो होते थे सोने चांदी के होते थे, लिहाजा वो उसके बराबर वो चांदी के सिक्के जो हैं वो सदक़े में दे दिया करते थे। और इसी तरह से बकरा या दुम्बा या बकरी अगर नहीं मिले तो बकरी भी। एक बात बहुत गलतुल आम है मौलाना, अगर इजाज़त दें, कि लोग ये कहते हैं कि साहब लड़का हो तो बकरा देना चाहिए, लड़की हो तो बकरी देनी चाहिए, हालांकि ये गलत है। जी हाँ, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बकरा ही दिया जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बकरा नहीं मिल रहा, दुम्बा नहीं मिल रहा, तो फिर दोनों के लिए बकरी दी जा सकती है बिल अमरे मजबूरी। तो 7वें दिन जो है अकीका ज़रूरी है। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर।
فكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی، مرید ہو گئی شب مرید ہو گئی ذوالفقار علی، مرید ہو گئی حیدر کی ذوالفقار علی، ادائے دے کی ہے سے قلم چلانے کی، ادائیں دے کی ہے سے قلم چلانے کی، علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج 15 رمضان، آمد نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مولائے کائنات حضرت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا، آپ تمام ناظرین کو مبارکباد۔ اور آج کا دن کسی عید کے دن سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ آج ان کی آمد ہے جو خود ہم شکل پیغمبر تھے، جن کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول خدا کی شبیہ یہی ہیں، اور اسی لیے ان کو ہم شکل
पैगंबर कहा जाता है और आप के फ़ज़ाइल और आपकी मोहब्बतें जो दुश्मनों से रही हैं कि किसी ने अगर उनसे तलख कलामी भी की तो आपकी मोहब्बत इस कदर उसको उसकी तरफ जाती कि वो ख़ुद उनकी मुरीदी में आने के लिए, मैं कहता हूँ कि नाज़रीन के इतनी आला शख्सियत के मालिक मेरे मौला हसन मुश्तबा जिनकी आज आमद है, आज यही हमारा मौजू होगा और मुख्तलिफ़ मनकबत ख़ान, नात ख़ान और उलमा इकराम हमारे साथ आज उनकी सीरत को बयान करेंगे कि आज का दिन 15 रमज़ान की जो हम सहरी करने जा रहे हैं, नवासे रसूल की आमद का दिन है। तो आज K21 न्यूज़ ने खुसूसी ट्रांसमिशन मौला हसन के नाम की है। तो आइए चलते हैं, मनकबत का आगाज़ करते हैं मीसम रज़ा से। मीसम रज़ा अता कीजिए कलाम अपना, माशाअल्लाह। सबसे पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाज़त है क़िबला। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ खुदा हसन का। और बतूल अज़रा की गोद में वो नुज़ूल जब कर चुका हसन का। सैयद मीसम रज़ा बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फिल इंसान